Welcome back दोस्तों. In the previous section we have learned balancing of redox reactions by oxidation number method. अब हम लोग फिर से balancing of reaction ही पढ़ रहे हैं by a new method which is known as ion electron method. Ion electron method से भी हम लोग reaction को balance कर सकते हैं. So let us see this new method. ये थोड़ा सा tedious method है as compared to the previous method. So the steps involved in the balancing of reaction by ion electron method are as follows. The first step which we have to take is determine the oxidation number of all the species in the reaction. Reaction में जो भी हमारे पास reactants है और products है उनके हम oxidation number निकालेंगे. उसमें से जिन स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनको अलग से हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे. जिन स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है दे विल फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. जिन स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है दैट विल फॉर्म द बेसिस ऑफ reduction reaction. उसके बाद the next step which we have to take is write the oxidation half reaction and reduction half reaction separately. Oxidation half reaction हम लोग अलग से लिखेंगे, reduction half reaction हम लोग अलग से लिखेंगे. अब individually जो हमने oxidation half reaction लिया है और reduction half reaction लिया है वहां पे हम लोग एटम्स को बैलेंस करना चालू करेंगे. ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वी हैव टू बैलेंस फर्स्ट. पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो एटम्स है हमारे पास उनको हम बैलेंस करेंगे ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड. नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड H2O. हमेशा अगर ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो ऑक्सीजन को कम हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H2O ऑन द रिक्वायर्ड साइड. प्रोडक्ट में H2O ऐड करो या तो रिएक्टेंट में H2O ऐड करो. जिस साइड में ऑक्सीजन का कमी है वहां पे हम लोग H2O ऐड कर लेंगे. वी विल ऐड H2O टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड H प्लस टू बैलेंस हाइड्रोजन. H+ हम लोग ऐड करते हैं हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए और H2O हम लोग ऐड करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑल दिस रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस हैं मोस्टली दे ऑकर इन एक्वियस मीडियम. एक्वियस मीडियम मतलब रिएक्टेंट सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसका सॉल्वेंट ज्यादातर पानी रहता है. तो H2O is the solvent, so we can add as much H2O as required to balance the number of oxygen atoms, and we can add as many H plus as required to balance the hydrogen atoms. क्योंकि H plus H2O से ही आएगा तो solution में हमारे पास बहुत सारे H plus ions है and we can use these H plus ions to balance the hydrogen in reactant or product as required. Next step after this, the fifth step is we have to add the electrons to balance the charges. अगर हमारे पास oxidation half reaction है जिसमें reactant और product में अलग अलग charges हैं तो we can add electrons as many as required on the reactant side or on the product side to balance the charge of the reaction. Overall charge of the reactants should be equal to overall charge of the products. अब ये electrons क्यों involved है? क्योंकि ये chemical reaction है. Redox reaction is a type of chemical reaction, and in chemical reactions we generally have give and take of electrons. Electrons reactant देंगे तो product electron लेंगे और अगर product electron देंगे तो reactant electrons ले रहे हैं. So we can add as many electrons as required on the reactant side and product side so that we have charge balance on both reactants and products. The overall charge on the
oxidation half reaction reactant side should be equal to the overall charge of the प्रोडक्ट साइड ऑफ ऑक्सीडेशन। तो प्रोडक्ट साइड भी हम लोग को उतना ही चार्ज रहना चाहिए जितना रिएक्टेंट साइड में। सिमिलरली रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट्स पे ओवरऑल जितना चार्ज होगा उतना ही प्रोडक्ट पे ओवरऑल चार्ज होना चाहिए। टू गेट दिस ओवरऑल चार्ज इक्वल वी विल एड इलेक्ट्रॉन्स एज एंड व्हेन which side they are required. Next step is multiply the half reactions to make equal number of electrons in both oxidation half reaction and reduction half reaction. हम लोग को एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फैक्टर से, ताकि जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन हाफ रिएक्शन में होने चाहिए। ओवरऑल कोई भी केमिकल रिएक्शन है, आज तक तुमने ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन देखा क्या कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हो? देयर इज नो केमिकल रिएक्शन ओवरऑल इन विच वी फाइंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स कैंसल होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स को कैंसल करने के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर हम लोग दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल कैंसल आउट and the net reaction will be free of electrons। तो वो एक balanced chemical reaction हो सकता है। उसके बाद we will add both half reactions and cancel out the species that appear on both sides। जो species reactant में भी है product में भी है उनको हम cancel कर सकते हैं, because लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर सेम चीज होता है तो हम जैसे मैथ्स में कैंसिल करते हैं वैसे ही केमिस्ट्री में भी हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर बेस। अगर हम लोग को क्वेश्चन में दिया है बेसिक मीडियम तो हम लोग ये सेट ऑफ स्टेप्स करेंगे। एसिडिक मीडियम है तो वी हैव ऑलरेडी एडेड H+ टू बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक मीडियम। अगर रिएक्शन दिया हुआ है कि बेसिक मीडियम में हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है? एसिडिक मीडियम में जैसे हमारे पास H+ होता है रिएक्शन में, वैसे ही बेसिक मीडियम में हमारे पास OH- होते हैं। तो फॉर whatever the number of H+ that we have either in the reactants or in the products, we will have to add equal number of OH- ions। जितने H+ हैं उतने ही हम OH- ऐड कर देंगे, क्योंकि H+ और OH- कंबाइन होके H2O बना देंगे। तो द रिएक्शन विल बी फ्री ऑफ H+ ions। द ओवरऑल एम फॉर बेसिक मीडियम is to get rid of the H+ ions। H+ ions denote acidic medium, and by adding the same number of OH- we can get rid of the H+ ions because they combine with OH- ions to form H2O। ओके, फिर दूसरे साइड में जो OH- रहते हैं वो हम लोग एज इट इज रहने देंगे, बिकॉज दैट OH- will denote a basic medium। The next step is to make the final check to make sure that everything balances। जो atoms reactants में होंगे वही atoms products में होने चाहिए। जितने atoms individually एक एलिमेंट के reactant साइड में होंगे उतने ही atoms individually एक atom के product साइड में होने चाहिए। Final step, we have to make sure the overall charge on the reactant side equals the overall charge on the product side। क्योंकि अगर चार्ज में इम्बैलेंस है मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बाकी रह गए। कोई केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बाकी नहीं रहते। जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन से लूज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन में गेन होंगे। तो नेट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट हो जाने चाहिए, और अगर नहीं हो रहे तो वी विल मल्टीप्लाई द हाफ रिएक्शंस टू मेक इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नाउ व्हाटएवर वी हैव टॉक्ड सो फार, हम लोग ने जो भी बातें की तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ये सब हम कैसे याद रखेंगे। तो ये सब याद नहीं रखना है, हमें प्रैक्टिस करना है। 2-4 एग्जाम्पल इसके सॉल्व करने हैं। वंस यू सॉल्व 4-5 क्वेश्चंस ऑन दिस will become automatic for you। ये मैंने स्टेप्स यहाँ पे थियरी में मैंने बता दिए कि these are the steps which we are expected to take, but the
रिमेंबरिंग पार्ट, ऐसा नहीं है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राइट द स्टेप्स नीडेड टू बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हमें ये सब पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। इन प्लेस क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक रिएक्शन दिया होगा which is let us say a redox reaction, we will have to balance that reaction by taking these steps, and after solving 3-4 questions this will come automatically to you. So let us first try to solve the first example. हम लोग ने 4 एग्जाम्पल अब तक रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस किए थे बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो वही 4 एग्जाम्पल्स हम लोग दूसरे मेथड से अब बैलेंस करने वाले हैं which is ion electron method. So the first reaction which we will take is the manganate ions. Manganate ions मतलब MnO4 minus. तो MnO4 minus ions है, ये पानी में हमने डाले हैं, तो it is a aqueous solution of manganate ions. अब aqueous solution of manganate ions का मतलब क्या है? जैसे पानी में हम लोग ने पोटेशियम पर मैंगनेट डाल दिया, तो पोटेशियम पर मैंगनेट पानी में जाने के बाद it dissociates into K plus ions which is the potassium ions and manganate ions which is MnO4 minus ions. तो ये हम लोग का रिएक्शन जो अब बैलेंस करना है हमें, that is involving manganese ion, manganate ions MnO4 minus and ferrous ions Fe2 plus ions. तो ferrous मतलब Fe2 plus, फेरिक मतलब Fe3+, ये हमेशा केमिस्ट्री में हमें याद रखना है। Fe2+ डिनोट्स फेरस, ये क्या है? फेरस। इसके जो भी कंपाउंड्स होंगे वी विल कॉल एज फेरस कंपाउंड्स, जबकि Fe3+ दीज आर फेरिक कंपाउंड्स, दीज आर फेरिक कंपाउंड्स। तो हम लोग मैंगनेट आयंस के सॉल्यूशन में फेरस आयंस डालेंगे। अब फेरस आयंस डालने का तरीका क्या है? We can take some compound having ferrous ions, जैसे हम लोग ने FeSO4 डाल दिया, ferrous sulfate, it is a salt, तो ferrous sulfate dissociate हो जाएगा into Fe2+ and SO4 2-. We are in this reaction concerned with the ferrous ions and the product side ferric ions. हम लोग सल्फेट जो एनायंस हैं उनके बारे में इनके डिस्कस नहीं करेंगे। तो लेट अस फर्स्ट सी MnO4 माइनस। अब एक बात और है, हम सल्फेट आयंस है या क्लोराइड आयंस है, द कंपाउंड इफ इट इज FeCl2 स्टिल दिस इज फेरस Fe2+ 2Cl-। अगर फेरस सल्फेट है तो Fe2+ और SO4 2-। हम लोग इन एनायंस के बारे में डिस्कस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये एनायंस का ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये अगर क्लोराइड रिएक्टेंट साइड में है तो प्रोडक्ट में भी क्लोराइड ही दे देगा, तो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, हेंस द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयंस डज नॉट लीड टू अ रिडॉक्स रिएक्शन। द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयंस डज नॉट लीड टू अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि जो रिएक्टेंट में सल्फेट होंगे वो एज इट इज सल्फेट फॉर्म में ही प्रोडक्ट में आएंगे, तो यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज इन्वॉल्व नहीं है। तो इसीलिए we will not talk about these anions, we will talk about the required cations and anions who undergo oxidation and reduction. The ones are manganate ions MnO4 minus and the other is ferrous ions Fe2+ in aqueous solution, मतलब हम लोग ने इनको पानी में डाला है, और प्रोडक्ट साइड में ये हमें बना देता है Mn2+ प्लस Fe3+ फेरिक आयंस। तो ऐसा बनेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे KMnO4 है और यहाँ पे फेरस सल्फेट है, तो यहाँ पे मैंगनीज सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पे हम लोग के पास यहाँ पे फेरस के साथ और एक एनायन ज्वाइन हो जाएगा। ओके, तो दैट काइंड ऑफ रिएक्शन वी हैव, ऑल ऑफ दीज आर इन एक्वियस मीडियम। नाउ वी वांट टू बैलेंस दिस रिएक्शन बाय न्यू मेथड व्हिच इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो एज द नेम सजेस्ट, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? आयन्स इन्वॉल्व होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। सो लेट अस सी द आयन्स व्हिच आर इन्वॉल्व। द आयन्स इन्वॉल्व हियर आर द मैंगनेट आयन्स व्हिच आर कन्वर्टिंग इनटू Mn2+ and ferrous ions which are converting into ferric 3+.
तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पहले मैंगनीज का यहां निकालते हैं। अब एक डिसीजन हमें लेना है कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इट इज वेरी वेरी इजी। ऑक्सीजन का हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड में -2 है और प्रोडक्ट साइड में जहां भी H2O बन रहा होगा या ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा वहां पे भी ऑक्सीजन -2 ही होगा। अगर प्रोडक्ट में H2O बन रहा है तो वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही होगा। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन का वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो वी विल नॉट कंसीडर द ऑक्सीजन बिकॉज इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम है, मतलब ऑक्सीजन ने न रिडक्शन किया न ऑक्सीडेशन किया। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट आयन व्हिच वी हैव व्हिच इज द मैंगनीज। तो इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? we will take MnO4- and we will add all the oxidation numbers of individual atoms. The addition of oxidation numbers of all the atoms is equal to the charge on the ion. The addition of oxidation number of all the atoms is equal to the charge on the ion. तो मैंगनीज और 4 ऑक्सीजन इनका ऑक्सीडेशन नंबर का सम आएगा नेट चार्ज ऑन द आयन व्हिच इज -1। तो Mn का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो ये होगा इक्वल टू -1। अगर ये मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व करें तो दिस विल रिजल्ट इन मैंगनीज कमिंग आउट टू बी +7। -8 यहां जाएगा तो +8 हो जाएगा, +8 -1 गिव्स 7। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड में है 7, प्रोडक्ट साइड में है 2। क्यों? चार्ज ऑन द आयन इक्वल्स इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। और यहां पे भी वही प्रिंसिपल से फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा, फेरिक का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा क्योंकि चार्ज ऑन द आयन इक्वल्स इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ इफ वी सी केयरफुली यहां पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर 7 से चेंज होके 2 हो गया है। 7 से 2 मतलब कम हो गया है तो दिस इज रिडक्शन। 7 से 2 कम होना सो इट इज रिडक्शन व्हिच विल से, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। सेकेंड थिंग, फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, इट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 to 3, तो इसीलिए देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो यहां पे दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस टू फॉर्म फेरिक एंड रिडक्शन ऑफ मैंगनीज टू फॉर्म Mn2+। तो दोनों हाफ रिएक्शंस हम लोग इंडिविजुअली कंसीडर करते हैं इस मेथड में। तो लेट अस स्टार्ट विद द मेथड। इसको हम लोग ने ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से तो बैलेंस करके दिखाया ही था, जहां पे हमने टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाला फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन and total change in oxidation number nikala for reduction reaction, and then we made those two changes equal by multiplying by some factor। तो वो हमारे पास दूसरा मेथड था which was oxidation number method। यहां पे हमारे पास सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर्स देखने हैं ताकि हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पहचान पाए और रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी पहचान पाए। तो लेट अस सी द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। पहले इस मेथड में हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। तो विच पार्ट इज गेटिंग ऑक्सीडेशन? तो द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट विच इज Fe2+ कन्वर्टिंग इनटू Fe3+। तो Fe2+ इट कन्वर्ट्स इनटू Fe3+। दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ ऑफ द रिएक्शन। थोड़ा 2-3 लाइन छोड़ के हम लोग नीचे लिख देंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन में हमारे पास क्या हो रहा होगा? The oxidation number will get decreased। तो reduction half reaction में let us see which atom or species is reducing its oxidation number। Manganese goes from 7 to 2, so this is corresponding to the reduction half reaction। MnO4- gives Mn2+, तो ये हमारे पास reduction half reaction है। अब Fe2+ से Fe3+, MnO4- से Mn2+, इन दोनों रिएक्शंस को हमें इंडिविजुअली बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने का तरीका क्या है?
let us first see the reduction part, then we will move on to the easier oxidation part. मैंगनीज MnO4 माइनस में हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम है, जबकि Mn2 प्लस प्रोडक्ट साइड में हमारे पास एक भी ऑक्सीजन एटम नहीं है. तो रिएक्टेंट साइड वी हैव 4 ऑक्सीजन एटम्स, प्रोडक्ट साइड वी हैव 0 ऑक्सीजन एटम्स. तो एक तरह से ये नाइंसाफी वाला बात हुआ कि एक साइड में 4 ऑक्सीजन, दूसरे साइड में एक भी नहीं है. तो इसीलिए हमें जिस साइड में 4 है उसके उल्टे साइड में 4 ऑक्सीजन ऐड करने होंगे. अब 4 ऑक्सीजन ऐड करना अलाउड है क्या? नहीं, बिकॉज ऑक्सीजन डज नॉट एग्जिस्ट इन नेसेंट फॉर्म. इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं हम लोग. दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. तो ये हम ऐड नहीं कर सकते. नेचर में जो एग्जिस्ट करता है वो O2 एग्जिस्ट करता है, बट O2 भी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि O2 इज नॉट देयर इन दिस एक्वियस फॉर्म. एक्वियस फॉर्म में हमारे पास O2 यहाँ पे नहीं है. एक्वियस फॉर्म में हमारे पास जो होता है दैट इज पानी, विच इज H2O. जितना चाहिए पानी हम लोग ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन का कमी है ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो हम 4 H2O ऐड कर देंगे. 4 H2O में हमारे पास 4 ऑक्सीजन होते हैं, तो 4 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में भी हो गए, 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में भी हो गए. तो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स. आफ्टर दिस, ड्यू टू दिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ H2O on the product side, what we now have is extra hydrogens on the product side. प्रोडक्ट में हमारे पास एक H2O मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 4 H2O मॉलिक्यूल्स में 8 हाइड्रोजन है प्रोडक्ट साइड में. रिएक्टेंट में हमारे पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 0 हाइड्रोजन्स. तो इसीलिए अब हाइड्रोजन के मामले में थोड़ा नाइंसाफी हुआ है, तो हम हाइड्रोजन को यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में ऐड करेंगे. तो कितने हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में? 8 हाइड्रोजन है, तो इसीलिए हम लोग 8 H प्लस आयोन्स ऐड कर देंगे ऑन द रिएक्टेंट साइड. तो रिएक्टेंट साइड में मैंने 8 H प्लस इसीलिए लिया, और MnO4 माइनस जो कि एज इट इज रहेगा, गिविंग Mn2 प्लस प्लस 4 H2O. ये 4 H2O हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किया था. सो दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन. नाउ लेट अस सी the balancing is complete for this reduction of reaction. Let us calculate the atoms. तो हमारे पास यहाँ पे एक मैंगनीज एटम, तो रिप्रोडक्ट साइड में भी एक ही मैंगनीज एटम है. रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम, तो प्रोडक्ट में भी हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम्स है. रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में भी हमारे पास 8 हाइड्रोजन है. ओके, तो दिस इज बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ द एटम्स. इंडिविजुअली कोई भी एटम देख लो, दोनों साइड बैलेंस्ड है, लेकिन चार्ज बैलेंस है क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है. एंड टेक माय वर्ड, इन दिस मेथड व्हिच वी आर डिस्कसिंग नाउ, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, यू विल नेवर हैव चार्ज बैलेंस ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड. यू विल हैव टू ऐड और लूज सम इलेक्ट्रॉन्स. कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड में ऐड करने पड़ेंगे या प्रोडक्ट साइड में ऐड करने पड़ेंगे, ताकि ओवरऑल चार्ज बैलेंस हो जाए. So let us check out the charge balance on the reactant and product side. In the reactant side, we have 8 positive charges and 1 negative charge. Reactant side में हमारे पास 8 positive charge है, 1 negative charge है. तो 8 और -1 overall 7 positive charges है. Product side में बात करें तो हमारे पास 2 positive charges है और 0 H2O में तो कोई चार्ज है ही नहीं, पानी तो न्यूट्रल होता है. ओके, तो 2 पॉजिटिव चार्ज है. तो रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में हमारे पास +2 चार्ज है, रिएक्टेंट साइड में +7 चार्ज, प्रोडक्ट साइड में +2 चार्ज. तो कोई ऐसा भी सोच सकता है कि प्रोडक्ट में प्लस चार्ज का कमी है, तो क्यों ना हम प्रोडक्ट में 5 पॉजिटिव चार्जेस ऐड कर ले. कोई बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि रिएक्टेंट में +7 चार्ज है, तो प्रोडक्ट में +2 चार्ज है, तो क्यों ना हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे प्रोडक्ट साइड, 5 प्रोटॉन्स ऐड कर दे ऑन प्रोडक्ट साइड, ताकि ओवरऑल 5 और 2 7 हो जाए. तो 7 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्रोडक्ट में और 7 पॉजिटिव रिएक्टेंट में भी है. पर ये गलत है, क्योंकि प्रोटॉन हम लोग ऐड नहीं कर सकते. क्या हम लोग प्रोटॉन्स ऐड कर सकते हैं उतने इजीली? नहीं. हम लोग केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन का बात करते हैं, प्रोटॉन्स के ट्रांसफर का बात नहीं करते. ओके, तो इसीलिए हम लोग ऐसा 5+ चार्ज ऐड नहीं करेंगे, हम लोग उसके बदले ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऑन द रिक्वायर्ड साइड.
यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो क्यों ना हम 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दें। तो 7 पॉजिटिव चार्ज और 5 नेगेटिव चार्ज मिलके बना देंगे पॉजिटिव +2 चार्ज हो जाएगा। रिएक्टेंट साइड में +2, प्रोडक्ट साइड में भी +2, तो नाउ इट इज बैलेंस्ड। सो द स्टेप हियर व्हिच इज क्रिटिकल is the addition of 5 electrons on the reactant side to balance the overall charge of this reaction. The overall charge on the reactant side must be equal to the overall charge on the product side, and that is done by addition of 5 electrons on the reactant side. Let us finally check if this is balanced now. तो एक बार और हम लोग फाइनली चेक कर लेते हैं। तो चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड अगर इस बार हम बात करें तो इट इज -5 + 8 which is +3 and +3 - 1 is +2, तो +2 चार्ज है रिएक्टेंट में, और यहाँ पे प्रोडक्ट में +2 चार्ज ही है, तो रिएक्टेंट में भी +2 चार्ज, प्रोडक्ट में भी +2 चार्ज, तो द रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ द चार्जेस। सो दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस्ड रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन अब बैलेंस हो गया, तो मैंने इस रिएक्शन को नाम दे दिया 2 नाम क्यों दिया, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन वाला है उसको हम 1 नाम देने वाले हैं। ओके, तो ऑक्सीडेशन का आप तुम इजीली मुझे बता सकते हो कि कैसे हम इसे बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट साइड में +2 चार्ज है, प्रोडक्ट साइड में +3 चार्ज है, तो क्या हम लोग एक प्लस इलेक्ट्रॉन या प्लस प्रोटॉन ऐड करेंगे? नो, द केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व प्रोटॉन्स, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे हम लोग ऐड करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? -1, +3 - 1 gives +2, तो नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। लेट अस कॉल दिस रिएक्शन नंबर 1। तो ये हमारा दोनों ही रिएक्शन हम लोग ने बैलेंस कर दिए। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गया, तो नाउ वी कैन ऐड द 2। देखो, अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का बात करूं तो इट इज समथिंग लाइक दिस, Fe2+ giving Fe3+ plus electron. This is equation number 1, and reduction half reaction is 5 electrons plus 8H plus MnO4- giving Mn2+ plus 4H2। अब इन दोनों रिएक्शंस में से हमें इलेक्ट्रॉन को हटाना है। हम नहीं चाहते कि ऐसा रिएक्शन हमारे पास आए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो। तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दिस रिएक्शन नंबर 1 एंड मल्टीप्लाई दिस बाय 5। हम लोग रिएक्शन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या होगा? देखो, हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा, हमें 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, ताकि हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जब ऐड करें तो 5 इलेक्ट्रॉन LHS में, 5 इलेक्ट्रॉन RHS में कैंसल आउट हो जाए, एंड द नेट रिएक्शन इज फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा करने के लिए हमें इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय फैक्टर 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करते ही रिएक्टेंट साइड में 5 फेरस आयंस हो जाएंगे, प्रोडक्ट साइड में 5 फेरिक आयंस हो जाएंगे, और प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन भी 5 से मल्टीप्लाई बनके 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो दिस इज नाउ अवर इक्वेशन 1 व्हिच वी रियली नीड, and the equation 2 which also has 5 electrons। इक्वेशन नंबर 1 में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, और इक्वेशन नंबर 2 में भी 5 इलेक्ट्रॉन में। और मजे का बात यह है कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में है, और सेकेंड इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में। तो उससे यह फायदा होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट अपने आप हो जाएंगे, हमें अलग से कुछ सोच के कैंसिल करने का जरूरत नहीं है। जस्ट मल्टीप्लाई बाय अ फैक्टर व्हिच makes the number of electrons equal in the oxidation half reaction and the reduction half reaction, and boom, the electrons will go out on both sides। तो हम लोग ऐड करते हैं एक एक करके। Let us first add the reactants of the oxidation half reaction, then the reactants of the reduction half reaction। तो हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना चालू किया, तो 5 Fe2+ ions plus 5 electrons plus 8 H+ ions plus manganate ions MnO4- giving, now we will add the product side of equation number 1 and equation number 2। तो product side of equation number 1 क्या है? 5 Fe3+।
plus 5 electrons, and then we have Mn2 plus and 4H2O. तो Mn2 plus है हमारे पास और 4H2O है। अब ये जब रिएक्शन ऐड होगा तो मजे का बात ये रहेगा कि 5 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में और 5 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में जो हम चाह रहे थे कि चले जाए वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या इसके अलावा और कोई कैंसिलेशन हो रहा है? नहीं। तो इसीलिए वॉट एवर इज द रिमेनिंग रिएक्शन वी विल कीप एज इट इज। जैसे 5Fe2 प्लस 8H प्लस MnO4 माइनस will give us 5Fe3 plus Mn2 plus 4H2. So this is the complete balanced reaction for acidic medium. अगर ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने का पूछा गया होता तो यही हमारा फाइनल आंसर है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सच्ची में ये करेक्ट है या नहीं है। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ Fe ions, ion ions on reactant side. रिएक्टेंट साइड में 5 आयन एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड में भी 5 आयन एटम्स हैं। रिएक्टेंट साइड में 8 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में भी 8 हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट साइड में 1 मैंगनीज है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 मैंगनीज है। रिएक्टेंट साइड में 4 ऑक्सीजन एटम्स है, प्रोडक्ट साइड में भी 4 ऑक्सीजन एटम्स है। In terms of the atoms, this reaction is completely balanced. Now let us check the overall charge of the reactants and overall charge of the products. They must be equal. तो overall charge on reactant side तो 5 into 2, एक फेरस पे 2 चार्ज है, ऐसे 5 फेरस है तो 5 into 2 प्लस 10 चार्ज है हमारे पास रिएक्टेंट में। और दूसरा प्लस 8, एक H प्लस के पास प्लस 1 चार्ज, 8 H प्लस के पास प्लस 8 चार्ज। मैंगनीज के पास -1, MnO4 माइनस 1 चार्ज। तो ओवरऑल नेट चार्ज ऑन द रिएक्टेंट्स इज 17 प्लस 17। प्रोडक्ट साइड में हम लोग चार्ज निकालते हैं 5 into 3, एक फेरिक आयन के पास प्लस 3 चार्ज, ऐसे हमारे पास 5 है तो 5 into 3 प्लस 15। मैंगनीज के पास प्लस 2 तो 15 plus 2 again gives 17 itself. So the overall charge on the reactant side is plus 17 and overall charge on the product side is plus 17. So this reaction is now said to be completely balanced in terms of all the parameters, whether it is atoms or the overall charge. So this is the complete balanced reaction in acidic